Good morning, students. In last video, I had explained you about different type of muscles. Either it is smooth muscles or it is striated muscles. So today we will discuss about different type of the protein which is within muscles. Okay. Now already know that striated muscle is having dark and then light band. So there is one dark band, then again there is a light band, then again there is a dark band. So this kind of muscle, which is also known as a voluntary muscle, that is associated with bone. Bone is a strong and a stiff structure. It cannot move from one place to another place itself because it is attached to muscles, and when the muscles they are contracting, then there is movement in bone. Okay. Now this dark and the light band of voluntary or the striated muscle, so that is made up of two protein. One is known as the actin, another is known as the myosin. And these two protein are called contractile protein. So why? Because they are helping in the process of contraction. मसल जो है, जो मूवमेंट जो हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये जो मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है. ओके, तो ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में एक हो गया एक्टिन एंड द अदर इज द मायोसिन. So today we will discuss about structure of contractile protein. The actin is a thin filament. As I told you, the light band, so that is made up of actin. And the actin is a thin filament, myosin is a thick filament. Each actin, so that is made up of 2F actin. हर एक एक्टिन जो है आपको वहाँ पर दो फिलामेंट्स मिलेंगे, और ये दोनों फिलामेंट जो है आपस में एक दूसरे के कॉइलिंग होकर के है, और उसका नाम क्या है? एफ एक्टिन. एफ एक्टिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल. तो शेप क्या है? ये ग्लोब्यूल है. सो दैट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन. और ये दो एफ एक्टिन जो है उसके पैरेलल आपको और दो फिलामेंट्स मिलेंगे जो प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन. ओके, so there are two actin F actin filaments, and these are the globular protein or the spherical protein, and running parallel to these two F actin. Also you can find out there are two filaments, they are also running, and these two filaments they are called tropomyosin. They are called tropomyosin. Okay, then on this F actin at regular interval there is another protein is present, and the name of the protein is troponin. तो troponin आपको इसमें से बीच-बीच में मिलेगा. कुछ गैप है, रेगुलर इंटरवल है, और बीच-बीच में आपको ये जो प्रोटीन troponin जो है ये प्रेजेंट है. और troponin क्या कर रहा है ना, F एक्टिन में जो एक्टिव साइट है, जहाँ पर आपका मायोसिन आकर के उससे कनेक्ट होगा, तो उस एक्टिव साइट जो है उसको कवर करके रख रहा है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन. Second type of contractile protein is known as myosin. So myosin, that is made up of single unit, and the single unit is known as meromyosin. बहुत सारा meromyosin जो है ये आपस में जुड़ करके myosin फिलामेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो एक डार्क फिलामेंट है, और वॉलंटरी मसल्स में ये डार्क बैंड का फॉर्मेशन कर रहा है. ओके, नाउ ईच meromyosin, so that is having a globular head. ग्लोब्यूल मीन्स स्फेरिकल हेड, शॉर्ट आर्म है जिसका शॉर्ट आर्म है, और एक टेल है. ये आपका हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया. तो देयर इज अ लॉन्ग टेल इज देयर एंड अ हेड विद अ शॉर्ट आर्म इज देयर. ओके, नाउ द हेड इज नोन एज हेवी मेरोमायोसिन. हेड जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हेवी मेरोमायोसिन बोल रहे हैं, और टेल जो है हम उसको बोल रहे हैं लाइट मेरोमायोसिन. ओके, नाउ इन द हेड देयर इज एटीपेज enzyme is present. ATP enzyme, so that is the enzyme which can produce ATP molecule. In the presence of ATP enzymes, ATP and inorganic phosphate can join together to produce ATP. तो ये enzyme कहाँ पर है? ये head में. Okay, and also the head that is binding to the active site. हमने कहा कि F actin जो है उसका रेगुलर इंटरवल में आपको ट्रोपोनिन एक प्रोटीन मिल रहा है, और ये प्रोटीन जो है एक्टिन का जो एक्टिव साइट है उसको कवर करके रख रहा है. बट जब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये प्रोपोलिन वहां से हट जा रहा है
एक्टिव साइड जो है एक्सपोज हो जा रहा है, खुल जा रहा है, एंड नाउ द हेड सो दैट कैन जॉइन टू द एक्टिव साइड टू मेक अ क्रॉस ब्रिज। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके चलते मूवमेंट पॉसिबल है, ये एक्चुअली किस तरह से हो रहा है उस मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे स्लाइडिंग विंडो, आजकल हम लोग लगाते हैं स्लाइडिंग विंडो, तो उसमें एक साइड जो है ये फिक्स रहता है, मूव नहीं कर रहा है, एंड अनदर वन सो दैट इज स्लाइडिंग। अगर आपको खोलना है तो आप इधर ले आ रहे हो, अगर आपको पूरा विंडो बंद करना है तो आप उसको स्लाइड करके इधर ले आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग से यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है। उसी तरह से मसल जो है ये भी बाय द मैकेनिज्म ऑफ द स्लाइडिंग सो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ओके, सिग्नल इज सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन का मतलब है हाथ पैर जो मूव कर रहा है, जिसको मूव कर रहा है हम उसको बोल रहे हैं मोटर ऑर्गन। और सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से सिग्नल आ रहा है। सिग्नल को कैरी करके मोटर ऑर्गन तक कौन लगा है? सो दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। ओके, सो द पॉइंट वेयर द मोटर न्यूरॉन सो दैट इज कनेक्टेड टू द मसल, सो दैट पॉइंट और द जंक्शन सो दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Okay, so the motor neuron, which is a neuron is a functional unit of the nervous system, so that is connected to the sarcolemma of the muscles, and that junction is called as the neuromuscular junction. ये जंक्शन में क्या है? एक मॉलिक्यूल का ट्रांसमिशन हो रहा है। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में क्लास 10 में पढ़े हो, आप लिखे हो कि जब न्यूरॉन जो है, दो न्यूरॉन जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एक स्मॉल गैप है विच इज कॉल्ड द साइनैप्स, और साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है, जिससे आपका इंपल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये जंक्शन में क्या हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम है एसिटिलकोलिन, सो दैट इज रिलीज्ड, और ये जब रिलीज हो रहा है तो ये सार्कोलेमा या फिर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल जो है, वहां पर एक जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल, सो दैट इज क्रिएटेड ऑन द सार्कोलेमा, और जिससे क्या हो रहा है? कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है। हम आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि मसल्स का सेल जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन है। अब कैल्शियम आयन जब रिलीज हो रहा है तो ये कैल्शियम आयन जो है ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर रहा है, और जब बाइंड कर रहा है तो ट्रोपोनिन जो है जो एक्टिव साइट को कवर करके जो रखा है, अब ये खुल जा रहा है, अलग हट जा रहा है, ना द एक्टिव साइट सो दैट इज एक्सपोज्ड। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज द एक्टिव फिलामेंट विच इज अ थिक फिलामेंट, एंड द थिक फिलामेंट सो दैट इज कॉल्ड मायोसिन। तो मायोसिन बीच में है, नॉन ओवरलैपिंग, और एक्टिन जो है ये उसको ओवरलैपिंग कर रहा है, और एक्टिन के बीच में एक जेड लाइन है। ये जेड लाइन जो है ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी उसका एबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो एक्टिन छोटा या बड़ा हो सकता है। ओके, so this actin so that is sliding over the myosin. Myosin is remaining fixed in the middle portion, and the actin so that can move over myosin. Okay, तो जब एक्टिन का जब एक्टिव साइड से खुल जा रहा है तो मायोसिन का हेड जो है ये एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर रहा है, और जब बाइंड कर रहा है तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो जब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और एक्टिव फिलामेंट जो है जब उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये स्लाइडिंग कर रहा है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द शॉर्टनिंग यू कैन सी दैट द मूवमेंट इज पॉसिबल। ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपका हेड ऑफ मायोसिन। हम आपको बताया कि मायोसिन का हेड में एटीपी एंजाइम से जो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, और एटीपी का यूज करके यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और इसको हम क्रॉस ब्रिज बोल रहे हैं, जिससे एक्टिन के यहाँ पर पुल हो जा रहा है, तो मसल जो है उसको शॉर्टनिंग हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर रिलैक्स कंडीशन में जब आ रहा है तो कैल्शियम वहां से हट जा रहा है, और फिर से एक्टिन एंड द मायोसिन जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। इफ यू सी द अपीयरेंस ऑफ मसल्स, there are two different types, one is the red fiber, another is white fiber. So red fiber or the red muscle, so that is red in appearance, and the white fiber, so that is white in appearance. Now why the color is red? Because there is a pigment is there which is
called myoglobin, and this pigment is having the ability to combine with oxygen. So in the red fiber, number of myoglobin, so that is more. So they are having more ability to take more amount of the oxygen. So these are aerobic in nature. And also you can find out there is more number of the mitochondria. If more number of the mitochondria is there, then more energy in the form of the ATP can be produced. Whereas the white fiber is having less number of the myoglobin, so the color is white, and also the number of the mitochondria is less. It is anaerobic in nature. Okay. Now we will discuss about skeletal system. You know that skeleton, so that is the framework of human body. If there is no skeleton in our body, then only you can find out the flesh will be there, and no particular shape can be maintained or the movement will not be possible. Okay, so that is the main frame. On the frame, the muscles they are connected, so that you are getting a particular shape of the body. Okay, in the human body there are 206 bones are there. Bone and the cartilage. Cartilage, so that is the soft bone, and the bones these are all the strong and the hard. Total number of bones in human body is 206. Next is axial skeleton. Axial skeleton, so that consists of 22 bones, and out of these 22 bones, 8 bones are making cranium, skull. The skull is having 8 bones, and these 8 bones they are fixed to each other because there is proper articulation is there, so that they can fix together. And these 8 bones are making the cranium. Then on the face you can see there are 14 bones are there. Facial bones are 14 in number, and this U-shaped bone, so that is called hyoid. Then inside the ear also there are 3 small bones are there. Smallest bone is there inside the internal ear, and the name of these 3 bones are malleus, incus and stapes. Then the skull articulates with vertebral column, because the skull or the cranium, so that is connected to the vertebral column. जो हमारे बैक साइड में है vertebral column जो है, ये skull जो है उससे जुड़ा हुआ है, और skull किस तरह से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर 2 बोन से जुड़ा हुआ है, और ये 2 बोन को हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स.